Good morning, Bacha. Welcome back to SST class of class 4. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10. Natural resources forest. In this chapter we will learn about what is forest, how many types of forest are there in India, and why it is important to conserve forest and wildlife. This is how a dense forest looks like. Come on, let's start the chapter and learn more about it. Natural resources. To lead a comfortable life, we are dependent on many things that are provided by nature. Some of these are air, water, soil, forest, animals, and minerals. These are called natural resources. We use these resources in our daily lives to take care of our basic necessities. Now, what happens about natural resources? Those resources which we get from nature. Natural resources कौन से resources होते हैं जो हमें nature से मिलता है? For example, air, water, soil, animals are given by nature only. नेचर ने हमें इतने सारे मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट सब दिया है. So we should also टेक केयर ऑफ नेचर विद आर बेसिक नेसेसिटीज़. और हमें भी नेचर का ध्यान रखना चाहिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ. You can see the picture that you can see air, soil, water, sunlight, animals, and forest. These all things are given by nature for कंप्लीटिंग आर बेसिक नेसेसिटीज़. यानी हमारी बेसिक नीड्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ दे रखी हैं. Natural resources are of two types: renewable resources and non-renewable resources. Now, natural resources are divided into two parts, that are renewable and non-renewable. Renewable का मतलब जो renew हो जाते हैं और हम उन्हें बार बार कभी भी unlimitedly यूज़ कर सकते हैं उन natural resources को. For example, air, हम हवा सांस लेते हैं तो that is unlimited. After that, non-renewable resources, those resources which are for limited time or extend too fast, means ऐसे resources जो हमारे लिए limited time period के लिए ही present है, हमेशा के लिए present नहीं है. For example, I must say coal. coal के fossil fuels हैं जो हमें dead plants and animals को decay होते होते हमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल के अंदर जाते हुए मिलता है. बट इफ़ वी आर गेटिंग इट आउट अगेन एंड अगेन हम उसको निकाले जा रहे हैं तो वो एकदम तो ख़त्म हो जाएगा. सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच नीड्स टू बी रिन्यूड ऑल्सो. अगर हम अपनी अर्थ का ध्यान रखेंगे तो ही अर्थ हमारा ध्यान रखेगी. Renewable resources are constantly renewed by natural processes. These resources are also known as inexhaustible resources. Sunlight, water, soil, animals, and forest are renewable resources. Now, renewable resources कौन से लोग जो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? renewable resources, जिन्हें हम क्या भी बोलते हैं? inexhaustible resources. After that, non-renewable resources are those resources which once used up cannot be renewed by nature or would take millions of years to get renewed. Non-renewable resources are also known as exhaustible resources. Iron, copper, coal, petroleum are exhaustible resources. Renewable resources are those resources जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, हम लोग ये बहुत ज़्यादा लिमिटलेस यूज़ कर लेते हैं, बट क्या ये रिक्रिएट हो सकता है कुछ टाइम में? नहीं. इट टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू. सो वी शुड यूज़ दीज रिसोर्सेज वेरी प्रॉपरली. हमें बहुत ध्यान से यूज़ करने चाहिए ये रिसोर्सेज, आयरन, कॉपर, कोल, पेट्रोलियम, बिकॉज
दीज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। ये हमें क्यों मिल रहा है? बिकॉज वी हैव आवर एंसेस्टर्स हैव प्लांटेड ट्रीज few years means for few decades back means उन्होंने बहुत ज़्यादा सालों पहले इतने सारे पेड़ लगाए हुए, जिसकी वजह से हमें ये आज कोल पेट्रोलियम वगैरह सब एक साथ मिनरल्स इतने सारे मिल पा रहे हैं, अदरवाइज we could get nothing. Come on, let's learn about a forest. Forest resource. A large area of land where there is dense growth of trees and bushes is known as forest. About one-fifth of the land in India is covered with forest. Now you know एक forest हम किसे बोलते हैं? Forest एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों से और छोटे छोटे पेड़ों से bushes से ढका होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? फॉरेस्ट। इंडिया में टोटल 1/5 ऑफ द लैंड इज engaged with forest, or you can say covered with forest, covered से cover है। Let me show you the picture. You can see in the picture that how India is covered with forest, the green area. Forest resources. A large area of land where there is a dense growth of trees and bushes is known as forest. Importance of forest. Forest consists of various types of trees and plants that provide us with oxygen. We need oxygen to breathe. So सबसे पहले फॉरेस्ट किस लिए काम आते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। कि हमें ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है ट्रीज और प्लांट्स का? हम लोगों को ऑक्सीजन देना। इसलिए हमें और फॉरेस्ट लगाने चाहिए जिससे हमारी ऑक्सीजन लेवल में बिल्कुल भी कमी ना आए। Fallen leaves and dead plants in the forest improve the quality of the soil. They make it more fertile. Means जैसे आपके ट्रीज या कोई फ्लावर या कोई भी प्लांट ट्रीज को शेड करता है, यानी इसकी पत्तियां गिरती हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर द प्लांट, क्योंकि जो पत्तियों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसको जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं? वो सॉइल में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल को फर्टाइल रखने में भी फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हैंड होता है। आफ्टर दैट फॉरेस्ट कॉज रेन एंड प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम बिकमिंग ड्राई। अब फॉरेस्ट क्या होता है? एक तो सॉइल को होल्ड करके रखता है जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट भी होल्ड होके रहता है। अब फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है? बारिश आती है। बारिश क्यों आती है? जितना बड़ा फॉरेस्ट होगा वहाँ पे उतने ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। मैम ने बताया था ना आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब लीव्स के अंदर से, यानी प्लांट की लीव्स के अंदर से पानी का इवापोरेशन होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। फॉरेस्ट कीप द सराउंडिंग्स कूल। अगर फॉरेस्ट कहीं भी लगा होता है, इवन अगर आपके घर के साइड में एक ट्री भी लगा हुआ है, तो दैट इज प्रोवाइडिंग यू अ शेड, वो आपको ठंडक दे रहा है। सेम वाइज कि जो एनवायरनमेंट को ठंडा रखने के लिए फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब फॉरेस्ट है तो यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स तो मिलेंगे। सो फॉरेस्ट आर द होम टू दीज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। तो ये फॉरेस्ट क्या होता है? एक तरीके से घर होता है उन बच्चों के लिए। किसके बच्चों के लिए? एनिमल्स के बच्चों के लिए, बर्ड्स के बच्चों के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बच्चों के लिए। फॉरेस्ट इज एन होम टू ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, forest provide us with wood for making furniture, mastic and paper। अब फॉरेस्ट पे जो प्लांट्स ट्री में ग्रो अप हो जाते हैं उनकी वुड को किस में यूज किया जाता है? इन मेकिंग ऑफ पेपर, मैचस्टिक, फर्नीचर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड और डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज होती है फर्नीचर क्रिएट करने के लिए। मैनी medicines are made from the leaves, roots and stems of trees। now बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम किससे बनाते हैं? उस पेड़ की पत्तियों से, जड़ी बूटियों, उनकी रूट्स से और उनकी स्टेम से। फॉर एग्जाम्पल
तुलसी लीव्स act as a medicine. जो तुलसी की लीव्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं? एज अ मेडिसिन. आफ्टर दैट फॉरेस्ट गिव अस वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. अब फॉरेस्ट है तो फूड प्रोडक्ट्स तो होंगे ही. दैट इज फ्रूट्स एंड vegetables. All the greenery we get from forest. Now we will learn about types of forest. There are five main types of forest: evergreen forest, tidal forest, deciduous forest, coniferous forest, and thorn forest. Come on, let us learn about these forests briefly in the chapter. First of all, evergreen forest. These forests are green throughout the year. This is because trees in these forests do not lose their leaves at once. अब ये जो trees हैं ये green रहते हैं पूरे साल और ये एक भी अपनी tree की leaf नहीं छोड़ते. मीन्स ऐसा यहाँ पे कोई पतझड़ का मौसम नहीं आता. After that, these forests are found in the area where there is heavy rainfall. They are found in Western Ghats, northern eastern India and Andaman and Nicobar Islands. Now what happened? ये वाले हमें ट्रीज कहाँ मिलता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वाटर अवेलेबल हो. मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज these trees will not grow well and these need these trees need high water. मीन्स इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है. तो अभी हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ये हमें ट्रीज देखने को मिल जाते हैं. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ rosewood. This is a rosewood tree. After that, ebony. This tree is of ebony tree है. After that, this is, yes, mahogany tree. So all these trees are evergreen forest. ये कभी भी अपनी leaf shed नहीं करते and they need a high rainfall for growing. Deciduous forest. Deciduous forests are also known as monsoon forest. Trees shed their leaves in the dry season. These forests are found in the foothills of the Himalayas, in the wetter parts of the Deccan Plateau in Jharkhand, Bihar, and Odisha. Trees such as teak, seal, shisham, teak, sal, shisham, semul, bamboo, and sandalwood are found here. डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बुलाते हैं. ये फॉरेस्ट ड्राई सीजन में यानी समर सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं और ये हमें कहाँ मिलते हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालय यानी जहाँ पे हिमालयन रीजन एंड होता है. इन द नॉर्दर्न प्लेन्स यू हैव read अबाउट द तराई रीजन. देयर ओनली वी फाउंड द deciduous forest in the foothills of the Himalayas in Himachal. So these are also found in the wetter place like Deccan Plateau, Jharkhand, Bihar and Odisha. Let me show you the pictures of the trees found here. You can see in the picture these are the examples of deciduous trees: neem tree, sal tree, teak tree and shisham tree. Thorn forest, areas that are dry and receive very little rainfall have thorn forests. The trees have long roots, thick bark, sharp thorns, and small leaves. They can survive on very little water for months. These forests are generally found in the desert areas of Rajasthan and in the dry areas of Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and Tamil Nadu. Trees like kikar, babul, and date palm are found here. थॉर्न फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन होता है. मीन्स एक तरीके से डेजर्ट एरिया ही
होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पानी होता है, वहाँ का जो सॉइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है। सो दीज प्लांट्स आर हैविंग वेरी लॉन्ग रूट्स। इन जो प्लांट्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा रूट लंबी होती है। इनकी जो बार्स होते हैं, मीन्स जो बार्क होता है ट्री का हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी छोटी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा कम पानी में बहुत महीनों तक रह सकते हैं। ये फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? ड्राई रीजन्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. Now let me show you the pictures of the trees found in the region. So here you can see that this is kikar tree, this one is babul tree, and this is date palm tree. So these trees need very less water to grow. इन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और ये हमें ड्राई रीजन में हर जगह मिल जाएंगे. Tidal forest. Tidal forests are also known as mangroves. The roots of the trees grow above the ground. These forests are found in the deltas of river Ganga, Brahmaputra, Manandi, and Godavari. Sundari tree grow in the tidal forest of the Sundarban delta. नाउ टाइडल फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट होता है जो सी या किसी ओशन के पास मिलता है, हम इन्हें और क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट. इनकी जो रूट्स होती है ट्रीज की, ये बहुत ज़्यादा ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं बिकॉज नीचे पानी होता है. और ये कहाँ कहाँ मिलती है? जहाँ भी किसी भी रिवर का एंड अप हो रहा है या माउथ होता है, मीन्स डेल्टास में मिलती हैं, जैसे रिवर गंगा के, ब्रह्मपुत्रा के, महानंदी के, गोदावरी का. So this is an example of Sundari tree. You can see the roots are above the ground, means water के ऊपर आ रही है roots. So these types of forests are found in tidal forest. Coniferous forest found in the Himalayan region and in parts of the Nilgiri hills. Coniferous forests have trees that are tall and cone-shaped with needle-shaped leaves. Trees such as chir, deodar, pine and spruce are commonly found in these forests. Now coniferous forest वो forest होते हैं जो है ना हिमालयाज में मिलता है. हिमालयाज कहाँ का? नीलगिरी फॉरेस्ट, सॉरी नीलगिरी हिल्स. कॉन्फिरियस फॉरेस्ट में क्या होता है? अब यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? कोन शेप्ड होते हैं, मीन्स एक ट्रायंगल बना रहे होते हैं. जैसे इन पे अगर स्नो फ्रीज हो तो वो स्लाइड डाउन होके नीचे गिर जाए. इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? निडल शेप्ड लीव्स होती हैं. I'll show you some example. So here is a picture of cher tree. You can see how the leaves are needle shaped. मतलब पतली पतली इसकी leaves हैं, बिल्कुल needle की तरह. Conservation of forest. There is an increasing demand for wood and other forest products in a developing country like India. Trees are being cut down in large numbers to fulfill the growing demands. Consequently, the forest cover is slowly and gradually shrinking. The large scale cutting down of trees is known as deforestation. Deforestation leads to many problems such as less or even no rainfall in the areas, leaving the lands dry, destruction of natural habitats of birds and animals, floods, landslides, and soil erosion. Forests should not be cut carelessly. People should plant more and more trees to increase the green cover of the earth. Time and again, the government has made efforts to save forests. One Mahotsav and various other awareness programs and projects encourage people to plant trees. Now, what do you mean by conservation? Conservation क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना. जैसे जैसे वुड की डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि इंडिया भी ग्रो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रीज काटे जा रहे हैं एंड नोबडी इज प्लांटिंग ट्रीज. इसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो भी खत्म होते जा रहा है. और जब बहुत सारे पेड़ इकट्ठे कटते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन बोलते हैं. डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे बहुत कम बारिश होना. बारिश कम क्यों होना? क्योंकि ट्रांसपिरेशन लेवल कम हो जाएगा और बारिश फिर नहीं आएगी. और अगर फॉरेस्ट कट डाउन होंगे तो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे.
सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन, सॉइल खराब हो जाएगा, फ्लड्स आने लगेंगे क्योंकि प्रॉपर इवापोरेशन और रेनफॉल नहीं हो रहा। लैंडस्लाइड हो जाएगी क्योंकि सॉइल को तो प्लांट्स है ही नहीं वहाँ पे होल्ड करने के लिए। माउंटेन एरिया पे अगर हम सब कट कर रहे हैं तो वहां से क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी। सो हमें फॉरेस्ट को इतनी गंदी तरीके से नहीं काटना चाहिए और हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, जिससे हमारी अर्थ का ग्रीन कवर मेंटेन रहे और हम लोग भी पोल्यूशन फ्री लाइफ जी सकें। गवर्नमेंट बार बार अपने एफर्ट्स डालती है कि हम लोग चीज़ें खराब ना करें, तो गवर्नमेंट ने एक वन महोत्सव प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था इसके लिए। और अब कई बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं जिससे लोगों को एनकरेज करा जाता है प्लांट करने के लिए ट्रीज को। Wildlife resources. India has a rich variety of wildlife. India's wildlife is its wealth. Though hunting is banned in our country, animals are illegally hunted for their skin, tusks, and fur. These are used to make expensive products. This has resulted in many animals becoming endangered and even extinct. Many wildlife sanctuaries and national parks have been established in India. These are protected areas where animals are allowed to live in their natural habitats. Animals such as the lion, tiger, leopard, rhinoceros, elephant, and nilgai are protected in their natural habitats in these sanctuaries. Now wildlife resources भी है हमारे फॉरेस्ट में अवेलेबल। अगर हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ भी खतरे में है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इंडिया में, वैसे भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, तो बहुत लोग उन लोगों को हंट करते हैं। क्यों हंट करते हैं? उनकी स्किन के लिए, लेदर लेने के लिए, उनके टीथ के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके फर के लिए, और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स खत्म होने को हैं और कुछ खत्म हो चुके हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं जिसके अंदर वो इन लोगों को, इन सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वो, लायन, टाइगर, लेपर्ड, डायनासोर, इन सबको आराम से गवर्नमेंट अपनी देख रेख में रखती है प्रॉपरली और उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराती है वहाँ के फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। सो वी शुड प्लांट ट्रीज एंड सेव आवर वाइल्ड लाइफ।